Welcome to Sigma Pi classes student. Myself Praveen West and a very good morning to you. I hope you are enjoying the lecture very well. In the previous topic, what we have done? We have done the types of chemical reaction. First one, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. And today we will do our finally oxidation and reduction reaction. Yes, oxidation and reduction reaction. So let's start. So first we talk about oxidation. What is oxidation? That is, it is simple. You know very well in the previous classes also. Addition of oxygen to a substance. Addition of oxygen to a substance is called oxidation, or we can say in another form, the removal of hydrogen. The removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. Are you getting my point? Now let's talk about reduction. I think you cleared the oxidation part. Okay, we will see in another form also as the lecture going on. We will see another form also. So don't worry about it. Let's talk about reduction. The addition of hydrogen to a substance. The addition of hydrogen to a substance is called reduction. Or in another form we can say the removal of oxygen from the substance is called reduction. So either we can say the addition of hydrogen to a substance is called reduction, or we can say the removal of oxygen from the substance is called reduction. Now one thing you have to be keep in your mind. What is this? This is reduction process is just opposite of oxidation. Means if a substance is oxidized and if you want to just reverse the process, that is if you want to reduction, then reduction process is just opposite of oxidation. Later on we will see one new term, that is redox process. Redox reaction. What is redox reaction? So wait, first we will discuss some terms which includes in this oxidation and reduction process. Are you getting my point? Reduction process is just opposite of oxidation. That is, reduction reaction is just opposite of oxidation reaction. So I think you have cleared this topic. So more clarity you will get from the example. So first, before we will do the example, let's have a look on some terms. That is oxidizing agent. This is very important term, oxidizing agent. Students are very confused about oxidation, oxidizing agent and reducing agent. So another term is reducing agent. So oxidizing agent, what is oxidizing agent? The substance which give oxygen to other substance. The substance which give oxygen to other substance. The substance which give oxygen to other substance is called oxidizing agent. The substance which give oxygen to other substance for oxidation is called oxidizing agent. The substance which give oxygen to other substance, okay, for oxidation is called oxidizing agent. Or we can say the substance which remove hydrogen from other substance. The substance which remove hydrogen from other substance is also known as oxidizing agent. Are you getting my point? Please keep these points in your mind. Later on I will give you a more general definition, but for the time being you have to focus on it. What I am saying, you have to focus on it. Okay, now the next term is reducing agent. The substance which gives hydrogen for reduction. The substance which give hydrogen to other substance for reduction is called reducing agent. Or we can say the substance which removes oxygen. The substance which give either hydrogen to other substance or the substance which removes oxygen from other substance is called reducing agent. So we will do one example and then
you will get more clarity. Okay, let's have a look to the example. Okay, so let's start the example. This is the example. अब आप देखिए कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया और हीट किया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ, तो आपने देखा कि कॉपर और H2O बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लो कि कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो गया कॉपर में, मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है और कॉपर बन चुका है, और H2 ने वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करी, H2 बना। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से कॉपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली रिडक्शन। आपको पता है ना रिडक्शन क्या होता है, removal of oxygen from the substance called reduction, and addition of oxygen from the to the substance oxidation. अब आपको एक चीज और क्लियर करनी है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे। वो टर्म्स भी मैंने आपको अभी बताई थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये टर्म्स मैंने आपको बताई थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है विच गिव ऑक्सीजन। तो कौन दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन दे रहा है। देखो ये ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है, इस सब्सटेंस को ये ऑक्सीजन दे रहा है और खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस्ड हो रहा है। देखो ऑक्सीजन देने के बाद उससे ऑक्सीजन छिन गई, तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों को ऑक्सीजन देता है, जो द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। अब देखो ये दे रहा है तो ये ले भी तो रहा होगा, ये हाइड्रोजन इससे छीन रहा होगा ना। ये H2 ने इस ऑक्सीजन इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन छीन ली ना, तो ये क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। भाई अगर ये देगा तो वो लेगा भी, तो वो छीनेगा भी, तो हाइड्रोजन ये वाला रिएक्टेंट इससे छीनेगा। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स प्रोसेस क्या होती है, पहले ये भी जान लीजिए। ये एग्जांपल वैसे रिडॉक्स प्रोसेस का एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको दिखा देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन, those reaction in which oxidation and reduction process take place simultaneously is called redox process. Those reactions in which oxidation and reduction process takes place simultaneously. Those reactions in which oxidation and reduction process takes place simultaneously is called redox reaction or redox process. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली हो रहा है रिएक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको क्लियर हो गया। अब एक मोर जनरल टर्म में आपको क्लियर करता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में बोलूं, ये तो मैंने कहा कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिमूव करेगा ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो सब्सटेंस दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपको एक मोर जनरल वे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बता दो, जो आपको याद रखनी है और हायर टर्म में, हायर क्लासेस में भी यही चलेगी। ठीक है, यही मेन डेफिनेशन है और इसी से आप करोगे, और ये मोर जनरल डेफिनेशन है और ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो क्या है, इसी एग्जांपल पे हम इसे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस, the substance which oxidizes, the substance which oxidizes, beta, the substance which oxidizes the substance which oxidizes the other substance and reduces itself, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस रिड्यूस इटसेल्फ। देखो यहाँ पे ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, खुद का तो रिडक्शन कर रहा है,
और दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करके खुद का रिडक्शन कर लेते हैं, वो सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करके खुद का रिडक्शन कर लेते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा द सब्सटेंस विच reduces the other substance and oxidizes itself. The substance, बेटा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है, ध्यान दो जरा। The substance which reduces the other substance the substance which reduces the other substance the substance which reduces the other substance and oxidize itself and oxidizes itself। देखो वो सब्सटेंस जो खुद का तो क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। देखो ये वाला जो सब्सटेंस है S2, इसने क्या करा, अपना तो ऑक्सीडेशन कर लिया और दूसरे का क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। तभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। भाई इसका तो रिडक्शन हो गया और खुद का क्या कर लिया उसने, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो दूसरों का रिडक्शन करके, रिड्यूसिंग माने रिड्यूस करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट माने जो दूसरों का रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों का रिडक्शन करके खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा। जब दूसरों का रिडक्शन करेगा तभी तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, अपना ऑक्सीडेशन करके दूसरों को रिडक्शन करता है। तो देखो इसने क्या किया, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लिया और इसका क्या कर दिया, रिडक्शन। The substance which reduces the other substance and oxidizes itself. The substance which reduces the other substance and oxidizes itself is called reducing agent. And the substance which oxidizes the other substance and reduces itself. बात एक ही है लेकिन ये मोर जनरल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आप सारी चीजें कर लोगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ये हो गया। ये क्या कर रहा है, दूसरों का क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का क्या कर दिया उसने, रिडक्शन। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एवरीडेज लाइफ में। तो देखो दो टाइप के हम जनरली देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, कोरोजन ऑफ मेटल। कई लोग देखते हैं और इसमें हमारा जो है बहुत ज्यादा कोरोजन ऑफ मेटल में अगर हम देखें तो कई सारे जो मेटल्स हैं, पहले तो देखें कोरोजन होता क्या है। कोरोजन, हालांकि इस कोरोजन ऑफ मेटल को हम डिटेल में 3rd चैप्टर में देखेंगे, मेटल नॉन मेटल में कोरोजन मेटल को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम केवल इफेक्ट बता रहे हैं एवरीडे लाइफ में, तो मैं बहुत ही ब्रीफ शॉर्ट में आपको ये बता दूं। कोरोजन होता है स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल, स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल। जो स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल है, मेटल की सरफेस को धीरे धीरे खा जाना, ठीक है, स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है कि मेटल जो है धीरे धीरे जो है सरफेस को क्या हो जाती है, खराब होती चली जाती है, खराब होती चली जाती है, उसी को कोरोजन कहते हैं मेटल का, ठीक है। मेटल की सरफेस धीरे धीरे क्या होती है, खराब होने लग जाती है जब आप उसे एयर, डैम्प एयर पे रखते हो। एयर मतलब एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, मतलब वो एयर जो कंटेन करती है, तो स्लो हीटिंग अप ऑफ द मेटल, तो उसमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। आपने जनरली एक बहुत ही सिंपल सा फेनोमेना देखा होगा आयरन का। तो आयरन Fe जो है, आयरन की रॉड है, आप उसे कहीं रख दो या कोई भी आयरन की चीजें आपने देखी होंगी, कुछ समय तक बाहर पड़ी रहती है, पानी वानी पड़ता है उस पर, तो आप देखो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, आयरन की जो चीज होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। रस्ट, रस्ट क्या हुआ, एक ब्राउन कलर का, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं हम इसे, क्या कह सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जो है इसके ऊपर फॉर्म हो जाता है। और रस्ट का फॉर्मूला होता है, आप लेटर ऑन देखोगे हायर क्लासेस में, Fe2O3.XS2O। तो इसकी फॉर्मेशन इसकी सरफेस के ऊपर हो जाती है, सरफेस के ऊपर, इसके स्टिक के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर लग जाती है, जिसके कारण आयरन क्या हो जाता है, आपका मेटल खराब हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है आयरन की वो वीक हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं कोरोजन। अब रस्ट और कोरोजन क्या है, इसमें भी कंफ्यूजन है भाई। कोरोजन तो आपने कहा स्लो हीटिंग अप ऑफ द मेटल, और रस्ट क्या, रस्ट भी वही है। आयरन के केस में अगर मेटल आपका आयरन है तो इसी कोरोजन को क्या कह दिया जाता है, रस्ट।
रस्टिंग ऑफ आयरन, हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लग गया, जंक लग गया आयरन पे, तो वो क्या है, कोरोजन ही है। कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल सारे मेटलों पे जो स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल हो रहा है, एयर ऑक्सीजन या डैम्प एयर मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो मेटल खराब हो रहा है, आपके मेटल में क्या हो रहा है, स्लो हीटिंग अप हो रहा है मेटल का। स्लो हीटिंग अप ऑफ द मेटल मतलब धीरे धीरे मेटल क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, खोखला होते चले जा रहा है, तो उसी को कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर मेटल आपका स्पेशली आयरन है तो उस कोरोजन को हम रस्ट कह देते हैं। तो इसीलिए ये फेनोमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फेमस है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेटर ऑन आप इसे हायर क्लासेस, क्लास 12 में पढ़ोगे, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ोगे, काफी बड़ी है, स्टेप में रिएक्शंस है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस। ये हायर क्लासेस में आप इसको देख पाओगे, क्योंकि ये जो है काफी 4-5 स्टेप की रिएक्शंस हैं, उसमें करके होती है, तो रिडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। स्लो हीटिंग अप ऑफ द मेटल, तो आपने देखा धीरे धीरे रस लग जाता है, तो वो भी कोरोजन ही है। तो आप देखो इसमें भी क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर और उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है। इसीलिए हाँ, इसीलिए जो है कई सारा हमारा जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है, सरकारी खर्चा जो मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, इसके लिए दिया जाता है। बहुत सारा पैसा हमारा जो है अपने मेटल्स को, अपने आयरन से बनी कई सारी चीजें, देखो आयरन सबसे इंपॉर्टेंट, मजबूत होता है ना, स्ट्रेंथ देता है हमें, तो हम क्या करते हैं, आयरन के ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज में लगाया जाता है, कई जगह जो आयरन की रॉड पड़ती है, छत में जो पिलर बीम पड़ती है आयरन की पड़ती है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप देख रहे हो कि वो सब आयरन की होती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, जो ब्रिज बन रहे हैं उनको पॉलिश करने के लिए, उनको जो है कोरोजन से बचाने के लिए उनपे क्या किया जाता है, पेंट वगैरह, ये सब हम लेटर ऑन देखेंगे कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें काफी खर्चा आता है, और ये सारा खर्चा जो है आता है, ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल। तो ये भी क्या है, एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा है, और ये आप जनरली आपको पता है। रस्ट मैंने आपको बता दिया, Fe2O3.XS2, Fe2O3.XS2। लेटर ऑन हम इसे देखेंगे। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और रेडिश ब्राउन कलर की एक रस्ट लग जाती है, तो ये भी क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल, स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, रेंसिडिटी, ये हम बहुत कॉमन है, इसको देखते हैं। तो पहले मैं इसे रब करता हूं, फिर हम देखते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब आप देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट टेस्ट आना। जो फूड आपके फैट और ऑयल से बने होते हैं, द फूड विच कंटेन फैट एंड ऑयल, द फूड विच कंटेन्स फैट एंड ऑयल, वो फूड जो कंटेन करते हैं फैट एंड ऑयल, आप उसे देखते होंगे थोड़े समय बाद उसमें क्या होता है, अगर आप उसे बहुत टाइम तक रख दो, ठीक है, आप अपने जैसे आपने क्या किया, कोई भी फूड जो कि फैट और ऑयल से बना कंटेन कर रहा है उसमें, तो आप उसे कई समय तक खुला छोड़ दो, तो थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, और खाने में भी खट्टा खट्टा सा होता है, सोरिंग टेस्ट आता है या अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है, उसका खराब हो जाता है वो, मतलब कि वो आपके लिए क्या हो जाता है, स्टेल फूड टाइप का हो जाता है, बासी हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाना। रेंसिड हो जाना मतलब सोरिंग इन टेस्ट हो जाना, अनप्लीजेंट स्मेल आना, उसका जो नेचर था वो ना होना। वो क्यों होता है, क्योंकि जो फूड कंटेन करते हैं फैट, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो जो आपका सब्सटेंस है जो फूड रखा हुआ है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका क्या हो रहा है, टेस्ट में चेंज आ जा रहा है, वो जो है अनप्लीजेंट स्मेल दे रहा है, तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, हिंदी में अगर आप इसे हिंदी में जानो, हिंदी में हम इसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे हम इसे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता हो जाना, मतलब आपका जो फूड है वो विकृत गंधिता हो जाना। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसका, ये जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है, चिप्स खाते हो आप, सब खाते हैं चिप्स, मुझे पता है, कुरकुरा, कुरमुरा, और क्या है वो मोटू पतलू, वो डब्बे में आता है ना पैकेट में, छोटा छोटा खाते रहते हैं। अभी आप लेक्चर भी देख रहे होंगे तो उसे खा रहे होंगे, मुझे पता है, हाथ में पकड़ के खा रहे होंगे उसे,
मोटू पतलू को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जो पैकेट में क्लोज पैकेट नहीं होता, बंद करके रखा रहता है, तो वो जब तक पैकेट में क्लोज है तब तक वो सेफ है। लेकिन आप उसे कुछ देर तक ऐसे रखो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बहुत टाइम तक आप उसे लॉन्ग टाइम तक ऐसे रखोगे तो खराब होने लग जाएगा। उसमें जो है क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, फाउल स्मेलिंग आने लगेगी, अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट में अलग सा होने लगेगा, खराब सा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन हो जाना, स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, फैट और ऑयल का। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो कुरमुरा होता है, ये सब होता है, इन सब में क्या होता है, ये लेस के पैकेट होते हैं, सुंदर सुंदर सा बनाया रहता है उन्होंने, मोटू पतलू, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पोटैटो चिप्स, ये क्या है, कुरकुरा, 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 ठीक है। इस टाइप के डिजाइन से आपको अट्रैक्ट करता है, आप खाते हो उसे, ठीक है। वैसे तो इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अपनी हेल्थ को, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को देखना चाहिए, और स्टेल फूड और ये सारी की सारी चीजें जो है, फास्ट फूड वगैरह चीजें नहीं खानी चाहिए। तो इन सब में फैट और ऑयल कंटेनिंग होता है, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, फूड में अनप्लीजेंट स्मेल आती है और अनप्लीजेंट इन टेस्ट हो जाता है, और इसी फेनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं, और या फिर हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, मैंने लिखा है वैसे ही है लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विकृत गंधिता, ठीक है। अब क्या है इसके उपाय, कैसे आप अपने रेंसिडिटी को रोक सकते हो। तो ये क्या करता है, जो आपको बेचते हैं मार्केट में, जो पैकेट बन के आते हैं मोटू पतलू का, कुरकुरा का, कुरमुरा का, जो भी खाते हो तुम लोग, तो उसमें कैसे उसको जो है बहुत टाइम तक उसे बचा के रखा जाए कि बच्चा खाए भी और उसे खुला भी रहे, तो इतना जल्दी खराब ना हो। तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रिवेंशन है, ताकि हम रेंसिडिटी को स्लो डाउन कर सके, उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, अनप्लीजेंट स्मेल आए लेकिन बहुत टाइम बाद आए, लॉन्ग टाइम तक हम उसे बचा सके, काफी समय तक हम उसको रोक सके। तो उसके लिए कुछ उपाय है, मेजर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो है एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है इसमें। क्या मिलाया जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, BHA और BST, दो टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक होता है BST और एक होता है BHA, ठीक है। BST होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। अब BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। दोनों में से कोई सा भी यूज कर लिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये इन फूड में मिलाया जाता है जो फैट और ऑयल है, जैसे चिप्स के पैकेट में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, ताकि इनकी जो उम्र है, जो आप खा रहे हो, ऑक्सीडेशन हो तो स्लो डाउन हो जाए, लंबे समय तक खराब ना हो, इसलिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, ताकि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ये दो टाइप के जो है आपके पास जनरली यूज किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, देखो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए मिलाया जाता है ताकि अब आपके जो फूड है उसमें फैट और ऑयल है ना, उसका ऑक्सीडेशन होने वाला था, जब आप उसे खुला छोड़ोगे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो इसको मिलाया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये उसका ऑक्सीडेशन ना होने देने के बजाय पहले अपना ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये कहेंगे कि उसको सेव करने के लिए पहले ये खर्च हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तभी तो इसको बोला एंटीऑक्सीडेंट, जो दूसरों को बचाएगा, उसको ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, उसको नहीं होने देगा। तो तब तक ये यूज, जब तक ये रहेगा तब तक ये उसको बचा के रखेगा, तो काफी समय तक ये उससे बचा लेता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये मिलाया जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। एंटीऑक्सीडेंट है फूड में मिलाया जाता है, वो चिप्स के पैकेट है उसमें मिलाया जाता है। कई सारे जो फूड आइटम्स मार्केट में मिलते हैं जिसमें फैट और ऑयल कंटेनिंग होते हैं, पोटैटो चिप्स, सारे पैकेट, कुरकुरे मुरमुरे जो भी है, तो उन सब में क्या मिलाया जाता है, BST और BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, इसका जो है यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब दूसरा और क्या तरीके हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर लो डाउन भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई खाना है जिसमें फूड, वो फूड जिसमें क्या है, फैट और ऑयल है, ठीक है, वो जैसा आप शक्कर पारे खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, उसमें भी क्या होता है, फैट और ऑयल होता है, ठीक है, जो भी होते हैं मतलब, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, या तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाता है लंबे टाइम तक बचाने के लिए, या फिर क्या किया जाता है उसे लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। फ्रीज में भी रख देते तो आप स्लो टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, उसकी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, होता तो है लेकिन स्लो डाउन हो जाता है, तो काफी थोड़े समय तक हम उसे बचा लेते हैं। हमारे खाने में खराबी नहीं आती है, हमारा खाना खराब नहीं होता है, स्मेल नहीं आती है उसमें, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आती है, अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं आता। दूसरा, स्लो डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में रख लेते हो आप उसे टेम्परेचर लो डाउन करने पे। तीसरा, जो पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स, कौन से पैकेट्स, कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं। अब मैं आपको कुरकुरे के पैकेट्स के बारे में बताता हूं थोड़ा, क्या किया जाता है उसमें। अगर एयर टाइट कंटेनर में भी आप रेंसिडिटी को बचा सकते हो, एयर टाइट कंटेनर, लाइट की अब्सेंस में भी आप उसे बचा सकते हो, लाइट भी नहीं पड़ेगी तो ऑक्सीडेशन होने में थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगा। तो एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में अगर आप बिल्कुल जहां पे एयर है ही नहीं, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो। देखा आपने, फुले से रहते हैं, तभी आपने कुरकुरा लिया होगा तो आप बोलते बहुत सारा है, इतना फूला हुआ रहता हो, ठीक है। तो बिल्कुल उसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए उसका, ठीक है, वो खराब ना हो, ठीक है। इसलिए जब आप उसे खोलते हो तो सारे वो उड़ जाती है गैस। तो उसमें क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में यूज किया जाता है, और इनर्ट गैस यूज की जाती है इसमें। क्या यूज की जाती है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस माने अनरिएक्टिव गैस, जो गैस रिएक्ट नहीं करती तो वो उसे बचा के रखती है ऑक्सीडेशन होने से, अनरिएक्टिव गैस। और अनरिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, N2 गैस। नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में जो है इस जो भी फूड आइटम्स भरा जाता है, कुरकुरे का थैला जो भरा जा रहा है सजा के, उसमें तो N2 गैस, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में उसको यहाँ पैक किया जाता है, एयर टाइट करा जाता है ताकि जो है वो खराब ना हो सके, तो पैक रहता है। जब आप उसे खोलते हो तो कुछ समय बाद, काफी टाइम तक जो है वो, और एंटीऑक्सीडेंट भी डाला जाता है ताकि जो है आपका फूड खराब ना हो। कई सारी चीजें हैं उसमें जो है, इनर्ट एयर टाइट कंटेनर से भी आप एसिडिटी को कम कर सकते हो। तो बेटा ये आप लोगों का, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे YouTube के चैनल में आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप मेरे से, क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपने, और जो नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो है ऑल आइकन, सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन होता है, उस पर प्रेस करे और ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और अगर पसंद आया है आपको मेरा वीडियो तो आप उसे लाइक करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट यूनिट आपकी 10th क्लास की समाप्त हो गई है, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।